physics. Very good. And my code number 225. Let me start. Good morning, everyone. Let me begin with a very simple idea. Imagine a chess piece being in many different positions, possible positions, until you finally decide your own move. That strange idea lies at the heart of quantum computing. I am Teresa of grade 11, studying in DPS Udaipur, and today I want to show you how some of the strangest ideas in physics, in quantum physics, slowly turned into the most powerful technologies we are building today: quantum computing and AI. So, why do you think that we need a new branch of physics? Classical physics works perfectly when we for macroscopic life like motion, machines, and electricity. But at atomic scales, it fails. Light behaves as a, light behaves. This is the Schrodinger's equation. This is Heisenberg's uncertainty. EPR paradox, quantum Hall effect, and quantum current. These were the core concepts of physics, and now its outcomes is exactly what quantum computing uses, and that's where I focus next. What is quantum computing? Quantum computing applies quantum mechanics to computation. A classical bit is either 0 or 1, but a qubit can be 0, 1, or both at the same time. Uh, but quantum computing is not just faster computing. Quantum, I will take a chess example. Explain classical chess and moves are evaluated one by one. In quantum computing, some are dependent, last element. Strategies cancel out via destructive interference. But when the system collapses in one final move, okay. Grover's algorithm shows that one clear not at least. Class computers take end of step search something, but quantum computers take root end of step for the to keep a soap bubble intact in a storm. That's why Microsoft used tuple qubit. Instead of fighting noise with heavy error correction, they protect quantum information at the physics level itself. Last final slide. You have taken 1.5 email. Okay, please come. This could be the key to fault tolerant quantum computing. फ्यूचर है वो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में क्या फ्यूचर रहने वाला है तो उसके लिए पहले मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा रहा हूं 4 MB की स्टोरेज होगी, सिंगल कोर का प्रोसेसर है, लेकिन इसकी पावर अपन मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जल्दी करना। तो ये एक मेरा डिवाइस है और वो मेरा विक्टिम का डिवाइस है जिसको मुझे जाम करना है, ठीक है। तो मैं इस डिवाइस से उसके ऊपर एक अटैक करूँगा, ये जाम हो गया है, ठीक है। जो आपके पासवर्ड्स है ना वो एक नॉर्मल कंप्यूटर क्रैक करने में कितना टाइम लगता है और एक क्वांटम कंप्यूटर उसको क्रैक करने में कितना टाइम लगाता है। जैसे आप 6 डिजिट का ओटीपी डाल रहे हो तो 6 डिजिट का ओटीपी क्रैक करने के लिए मिली सेकेंड्स ऑफ टाइम लगता है क्वांटम कंप्यूटर को क्रैक करने के लिए। तो आगे जाके सिक्योरिटी का लेवल क्या होगा, तो कंप्यूटर सिर्फ सेकंड्स में किसी पासवर्ड को क्रैक कर देगा। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन निकाला है वो भी क्वांटम फिजिक्स से आता है। जैसे इंग्लिश में एक saying है आयरन कट्स आयरन, वैसे इसका जो सॉल्यूशन है वो भी क्वांटम कंप्यूटर से ही आता है। इसके लिए कई एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में, इसमें काइबर्स एल्गोरिथम है और ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम्स बनाई गई है जो कि इक्वली उसी हिसाब से सिक्योरिटी भी और वल्नरेबल होती जा रही है। इसके लिए सॉल्यूशन में एल्गोरिथम्स बहुत अच्छी बनाई गई है, सेफ एल्गोरिथम्स बनाई गई है। Code number 227. Audible guests and dear friends, मैं आज आपको
बताना चाहती हूँ क्वांटम फिजिक्स सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। इसने मेडिसिन की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की वजह से डॉक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तरह क्वांटम टेक्नोलॉजी की वजह से डॉक्टर्स हमारी बॉडी को एटम और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर देख सकते हैं। इतनी बारीकी से काम करता है कि बीमारी होने से पहले इसका पता लगाया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि ये लाखों करोड़ों मेडिकल रिपोर्ट्स को सेकंड में चेक कर सकते हैं। इससे ब्लड में इंजेक्ट किया जाएगा और उससे वो पूरी बॉडी में घूमकर आपकी जो डिजीज वाली सेल है उसको मरम्मत करेगा। जो स्टेट से पास किया जाता है और स्क्रीन पर ब्राइट लाइन्स बनती है, ये लाइन्स लाइट के वेव होने पर ही बन सकती है। इस एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग ने 1801 में एक्सप्लेन किया, जिससे लाइट के वेव होने का पता चला। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इस एक्सपेरिमेंट में लाइट को जब मेटल की सरफेस पर डाला गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। किताबें बोलती नहीं है, मौन धारण करके रखती है। किताबें बोलती नहीं है, मौन धारण करके रखती है, पर हमें बहुत कुछ सिखाई जाती है। बोलना भी सिखाती है और लड़ना भी सिखाती है। तो इस ज्ञान की गंगा में हम इतने बह गए कि टाइम लिमिटेशन का भी हमें ध्यान नहीं रहा। इस कार्यक्रम की बेला में आगे बढ़ते हुए मैं इनवाइट करती हूँ कोड नंबर 229। Respected teachers, honorable judge, and my dear friends, I am Mutifa from class 12. आज मैं आपको साइंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्ट्रीज टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगी, जिसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या होता है। क्वांटम फिजिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो बहुत ही छोटी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करवाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने गहरे तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं कि अगर इनमें से एक पार्टिकल्स में चेंज होता है तो उसी टाइम दूसरे पार्टिकल्स में भी चेंज होता है। और ये चाहे कितनी भी दूरी पे हो, इनकी दूरी एक रूम की हो सकती है, एक सिटी की हो सकती है, या फिर स्पेस की हो सकती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। सोचिए आपके पास कोई स्पेशल कॉइन्स है। जब तक आप कॉइन्स को चेक नहीं करते तब तक ये डिसाइड नहीं कर सकते कि टेल आएगा या हेड। आप एक कॉइन को अपने पास रखेंगे और दूसरे को कोई दूसरी जगह दूर रख देंगे। जैसे ही आप अपने कॉइन को देखते हैं और दूसरे कॉइन कोड नंबर 231। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 के बारे में बता 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स साइंटिस्ट दिया गया है, जिनका नाम है जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोट एंड जॉन मेटरी। उन्होंने डिस्कवरी की मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। फॉर एग्जांपल, single part double split we use delayed choice eraser experiment. So what happens is that सबसे पहले ये बहुत एक यूनिक कैरेक्टर क्वांटम देखा बेंचमार्क जो थॉमस यंग ने डिस्कवर किया। क्या हुआ कि थॉमस यंग इन 1866 यंग फर्स्ट डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल एक्सपेरिमेंट में उसने ही पास्ड सोर्स डबल स्प्लिट पी। सो उसमें इंटरफेरेंस पार्ट ये इंटरफेरेंस पार्ट से ये पता चलता है कि वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर और एक लाइट एक वेव। बट देन 1967 में इसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया था। इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब किया था ना तब उनको तब इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। बट इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल मानते थे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था तो ऐसा क्यों नहीं आया। तो फिर उन्हें सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से किया, मतलब एक एक पार्टिकल को डबल स्लिट से भेज रहे थे। तो जब एक एक पार्टिकल को भेजा तब भी इंटरफेरेंस आ रहा था। जैसे पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को भी कैमरास देख रहे हैं, इसलिए नॉन इंटरफेरेंस देख रहे हैं। तो
उन्हें कैमरा को पीछे ले गया ताकि ऐसे कि वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को पहले हिट करे फिर कैमरा के पास जाए। बट फिर वापस नॉन इंटरफेरेंस आ गया, क्योंकि अपने पास वो इन्फॉर्मेशन थी कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है। और फिर यही चीज़ हम लोगों ने एक इरेजर सर्किट, मतलब 1967 उसके आगे एक इरेजर सर्किट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हम वो इलेक्ट्रॉन्स को की जो इन्फॉर्मेशन होती है, विच वे इन्फॉर्मेशन, उसको इरेज कर देते हैं। ये आज से देखोगे पहले तो अच्छा दिख रहा था, समझ पाया। वेट, इसको थोड़ा सेट कर इसको पीछे रखो। हाँ इसको ऐसे रिजल्ट बता थोड़ा अंधेरे में से दिख रहा है। ये देखो फ्रिंजेस दिख रही है आपको, लाइट ज्यादा है इसलिए पैटर्न है, लेजर है वो यूनिक डार्क एंड ब्राइट, और जो इंटरफेरेंस से धीरे धीरे डिम होते जाते हैं, इंटेंसिटी कम होती है। इससे पता चलता है कि लाइट एक वेव है। बट हमारे सेशन को कंक्लूड करने का, तो जब मैं बीएससी में था 3rd ईयर में, तब हमारे कालरा सर ने हमको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई थी। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज कालरा सर हमारे सामने हैं। और आप ही ने मुझे सबसे पहले, उस समय हम पढ़ रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल कैसे न्यूक्लियर को छोड़ के बाहर निकलेगा, वो क्वांटम टनलिंग का जो पहला एक फीलिंग है थियोरेटिकल, वो हमने सीखी। बेटा एक बार आप बैठो प्लीज। और साथ ही हमारे बीच में सेट के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो इसरो की एक संस्था है, उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक श्रीमान पोखरना साहब हमारे बीच में हैं। तो जब मैं पोखरना साहब से चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब क्वांटम, ये बातें तो है, ये जो मैं ब्रोशर दिया, तो आपने बताया क्वांटम बायोलॉजी भी हो गई है। तो बायोलॉजी तक में क्वांटम साइंस का एप्लीकेशन है। और हमारे बीच में मेहता जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कालरा साहब प्रोफेसर रहे हैं हमारे MLSU में फिजिक्स के, और कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। और सबसे बड़ा, अध्यात्म में भी आपका बहुत गति है। तो पहली बार मुझे ताओ ऑफ फिजिक्स नाम की जो पुस्तक था, उसका नाम भी आपने बताया, अनसर्टेनिटी क्या होता है उसके बारे में बताया। तो एक आध्यात्मिक फीलिंग भी है। तो इस अवसर पर मैं नरेश जी सर को आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे तीनों पधारे हुए अतिथियों का उपहार उड़ाकर और एक पौधा समर्पित करके स्वागत, अभिनंदन करें। इधर फ्रॉम RBSC और CBSE, एफर्ट जो आपने लगाया, दैट इज इम्पोर्टेंट। हर एक प्रेजेंटेशन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छा था। क्यों था? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपके सिलेबस में हो, फिर भी आप लोगों ने यहाँ से वहां से कैसे भी करके इन चीजों को लेके आए। और मॉडल, मैंने खुद ने कोशिश की कि मैं देखा मॉडल खोजता हूँ कुछ बन जाए, लेकिन अवेलेबल इतनी इजीली नहीं है। फिर भी आप लोगों ने उनके मॉडल्स बनाए, समहाउ अपना दिमाग लगाया। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। साइंस है क्या? एक जिज्ञासा, एक कुछ जो चीजें अज्ञात है उसके पर्दों को हटाना, और कोई चीज कैसे हो रही, क्यों हो रही है, उसको सोचना। बहुत सी बार इंटरप्ले होता है, थ्योरी आगे चलती है और प्रैक्टिकल बाद में आएगा। बहुत सी बार प्रैक्टिकल पहले चल जाता है और थ्योरी बाद में आएगा। जैसा कि अभी अपन ने लेजर का एक्सपेरिमेंट देखा, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, फिर वो गायब हो जाता है। तो प्रैक्टिकल साफ दिख रहा है आपको, और लेकिन थ्योरी बाद में आती है, जो क्वांटम थ्योरी है जिस तरह से भी। तो हमने विभिन्न आयामों को छुआ। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है। तो आप बच्चों ने बहुत अच्छा तरह से इसमें प्रयास किया। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेव है या पार्टिकल है, प्रोबेबिलिटी वेव क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। हालांकि हमें भी BSc में पता चला था, पर आप लोगों ने अभी इस फील्ड को टच किया है, दैट इज रिमार्केबल। फिर सबसे बड़ा यंग का एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
एंड इरेजर एक्सपेरिमेंट, जो अभी लास्ट में उसको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से दो पार्टिकल, उससे पहले ही पता चल जाता है और अपनी जो नेचर है वो उसको वो खो देता है। फिर हमने क्वांटम टनलिंग पर बात की, किस तरह से सूचनाएं वो बैरियर को पार करके सन के ऊपर क्वांटम टनलिंग ये जो आ रहा है, किसी भी सन के अंदर से इतना डेंस होता है कि वेव जो एनर्जी है रेडिएशन को आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट वो थ्रू टनलिंग हमारे पास आता है। क्यूबिट एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि हमारा आने वाला फील्ड है। अभी तक हम बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 में लॉजिक गेट्स में बात करते हैं, अब आने वाला समय हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग का हो गया। और आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम किस तरह से हमारे लाइफ को गवर्न करेगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया, क्योंकि एक पासवर्ड है तो उसके क्या डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपने मान लीजिए 3 पासवर्ड लगाए, 1 2 3 का, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 3 या 4 या 6 या 9 होंगे। तो आप कैलकुलेट करके मान लीजिए 9 सेकंड के अंदर उसको क्रैक कर लेंगे। पर जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा क्या होगा, आपके प्रोबेबिलिटी जो इसके डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है वो बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अगर बहुत लंबा पासवर्ड है तो उसको क्रैक करने में उसको बहुत हजारों साल लगेंगे, तो वो इसको क्रैक नहीं कैसे को करनी पड़ेगी। तो क्वांटम कंप्यूटर वो रात में और इन भी उसकी स्टेट, तो उसको भी कंप्यूटर है। तो अभी हमने देखा नोबेल प्राइज में ये कि जो पहले क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट सुपर कंडक्टिविटी वाला जो था वो बहुत ही लोअर टेम्परेचर होता था और मैक्रो लेवल होता था। तो हमारे जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े मैक्रो लेवल पर है, थोड़े बड़े और थोड़े कम टेम्परेचर पे भी आपका जो ये इफेक्ट है वो दिख जाएगा। तो हमारे जो किट्स हैं उनका रिवोल्यूशनरी और हमें ज्यादा उपयोग फायदा होगा। इस तरह आप सब ने बहुत ही अच्छे तरह से प्रयास किया। अब मैं कालरा साहब को आमंत्रित करके हमें थोड़ा भाषण प्रदान करना। इस क्रम को रूप देने में की बात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन और सभी स्कूलों को आमंत्रित है कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों, इसलिए वो वास्तव में कि कॉलेज लेवल की या यूनिवर्सिटी लेवल की चीजों को स्कूल तक आकर एक में एक साथ उत्साह प्रिय मुखर्जी साहब, उन्होंने भी फिजिक्स में एमएससी की है, मैं 2 साल बाद, और मैंने भी इसमें की यूनिवर्सिटी से, और इसरो बहुत बढ़िया रहे। कई चीजों में क्वांटम वो भी अध्यात्म में ही रखते हैं। आज के क्वांटम मैकेनिक्स के जो है वो अध्यात्म में लगाए जा रहे हैं और अंतर के नियम में क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉन्शियसनेस का एक फील्ड पैदा हुआ है। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि वैज्ञान नाम या कॉन्शियस नाम की चीज नहीं, सब चीजें जो है वो मैटर से पैदा हुई है। धीरे धीरे सेल है उसमें डेवलपमेंट गए और अलग अलग तरह के जो पहले जानवर बना, पहले पेड़ थे, फिर पानी के जानवर, फिर जमीन पर चलने ममल्स बने, इस प्रकार करते में जो है जो मनुष्य बना और की चेतना अपने आप आ गई। उस चेतना का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार का चलता था। कॉन्शियसनेस इज रिफाइनमेंट ऑफ मैटर, डेवलपमेंट ऑफ मैटर, ऐसा की बात है। लेकिन अब ऐसा युग आ गया है कि मैकेनिक्स एंड कॉन्शियसनेस पर रिसर्च करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स की फेलोशिप दी जा रही है, दी जा रही है। तो लगभग सभी देशों में जो विकसित है, अमेरिका और रूस वगैरह, उनमें भी ये काम हुआ है। और वे आश्चर्य कि नासा जैसा संस्थान और संस्थान, बड़े बड़े संस्थान, हमारे स्क्रिप्चर्स जो भारत के स्क्रिप्चर्स से पहले वेद, उपनिषद, अलग तरह के ग्रंथ, षड दर्शन, उनका वो अध्ययन के उनमें से चीज को निकाल रहे हैं। हमारी एस्ट्रोनॉमी हुई दुनिया में विख्यात थी, चाहे वो आर्यभट्ट हो, बराल हो या दूसरे एस्ट्रोनॉट्स हो, उनके नाम पर नासा जैसे संस्थान ने भी नाम रखे हैं और उनका सम्मान किया। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो श्रोडिंगर से आती है। उसके पहले 1900 में, यानी टर्न ऑफ द सेंचुरी, प्लैंक ने क्वांटम का आइडिया दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने यूज किया।
अब हम देखें कि आइंस्टीन जिसने क्वांटम कंसेप्ट का यूज फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन करने में यूज किया, उसको नोबेल प्राइज मिला। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर नहीं मिला है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की बहुत बड़ी देन है, लेकिन तो इस प्रकार का एक डिबेट उस समय था। और अब जो क्वांटम मैकेनिक्स में नई नई खोजें हो रही हैं, कंप्यूटिंग के बारे में आपने सुना, ये तो रिसेंट विषय है। बाइनरी सिस्टम जो है उसमें 0 और 1 ही है स्टेट्स, लेकिन इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अभी बताया, ये हम कई स्टेट्स पार्टिकल्स भी हैं। जब तक आप पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करो तब तक वो किस स्टेट में हमें पता नहीं। एक फोटोन या इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बीच में हम उसको, तो इंटेंगलमेंट को इस तरह से समझें, जो आपका सबसे प्रिय है, कोई ना कोई तो प्रिय होता है ना हमारा, वो कितना ही दूर हो उसकी एक झलक मिल जाए तो हमारी स्टेट चेंज होती है, नहीं होती है? दैट इज सॉर्ट ऑफ इंटेंगलमेंट। कितना ही दूर हो, इस भीड़ के अंदर कोई आपका एक प्रिय, आपका रोगी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आप कहीं बिछड़ जाओ और मेले के अंदर दूर से एक नजर आ जाए, दैट इज इंटेंगलमेंट। हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं ना, इस तरह से दूर दूर भी चीजें हो सकती है। तो अध्यात्म के अंदर जो जैसे हुआ द्वैत का सिद्धांत, और इतने अच्छे आपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और आप ये करके आगे करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। और हो सकता है कि आप अगर कुछ बच्चों को मतलब नोबेल प्राइज भी मिला है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी, उस समय उदयपुर में जन्मे एक डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी थे। उन डॉक्टर दौलत सिंह की कोठारी ने 1930 के अंदर हमने रदरफोर्ड के अंदर में पीएचडी किया था। आप सोच सकते हो, उस समय गुलाब थे, उस समय उन्होंने पीएचडी किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। रदरफोर्ड, बोहर और डिराक के नाम याद है कि आपने, वो सब उनके दोस्त थे, मित्र थे। अगर दिल्ली में आए थे तो उनसे मिलते रहते थे। तो इस दृष्टि से बहुत अच्छा काम आप लोग भी कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मेरा मित्र है जो मोहल्ला का रहने वाला है, उसका लड़का अभी उसका सिलेक्शन हुआ है सर्च लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पे वो लार्ज एंड कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे उसका सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। और जहाँ तक ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर की बात है, बच्चे थोड़ा शांत रहिए। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ क्वांटम कंप्यूटर है तो फिर उसका आंसर दे सकता है। इस कमरे के अंदर कितने क्वांटम कंप्यूटर हैं आज की तारीख में? आंसर दे सकता है इसका? नहीं दे सकते। मैं कहूँगा कि जितने बच्चे हैं वो सब क्वांटम कंप्यूटर हैं। वो क्यों है कि जो हमारा ब्रेन है वो क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। क्यों करता है? उसमें अभी जो लेटेस्ट खोज हुई है वो ये हुई है कि जो न्यूरॉन होता है ब्रेन में, आपने न्यूरॉन का तो नाम सुना होगा, तो न्यूरॉन के आगे और जाते हैं तो माइक्रो ट्यूबल्स आते हैं। एक न्यूरॉन के अंदर हजारों माइक्रो ट्यूबल्स आते हैं, और माइक्रो ट्यूबल से अगर आप आगे जाओगे तो उसके अंदर ट्यूबलिन आता है जो क्वांटम का। अभी ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि एक मानो ठीक है, यहाँ बात मत करिए प्लीज। फोटोन यहाँ पे है, जमीन पे है, और उसका दूसरा पैर उसको मतलब सैटेलाइट में रखेंगे,
तो फिर सैटेलाइट के थ्रू क्या वो कम्युनिकेशन हो सकता है? तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्वांटम कम्युनिकेशन होगा। मतलब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जमीन के ऊपर इसरो ने अचीव कर लिया है कि हम है जो जमीन के ऊपर एक सेंसर यहाँ रखा जैसे एक और एक यहाँ से मान लो सुपर सूरज पॉइंट पर किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन। हम भी किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो सेम वे वी हैव टू प्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट और व्हाट रिसर्च व्हाट डेवलपमेंट वी हैव डन इन फॉर्म ऑफ पीपीटी। दिस इज द न्यू मॉडल। तो हमने भी सोचा चलो हम हमारे बाल वैज्ञानिकों को अभी से इसका प्रयास करते हैं। सिमिलरली वी डेमोन्स्ट्रेट द पोस्टर। एक पोस्टर में हम खड़े हो जाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। मॉडल का आपने अच्छा किया है, तो अब आपका समय है कि हम, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। इम्पोर्टेंट ये थिंग कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट थे बेसिक उस सबको सुना, उन सबको समझा और आप इनलाइटेड हुए होंगे कि वास्तव में क्यूबिट्स क्या होते हैं। एक फ्लेवर अपने आप में काफी है। आगे आप खोजते रहोगे, आगे आगे अपने जीवन में आप सब करते रहोगे। पूरी मैथमेटिक्स किससे चलती है? जोड़ बाकी गुणा भाग से तो चलती है। तो उसी के तो कॉम्बिनेशन है, हायर चलते जाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल तो यही है हमारे। तो इसी तरह से एक सोचना समझना क्या चीजें भविष्य में ऐसे भी होती है, वो महत्वपूर्ण है। तो मैं अब पहले जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है उसके लिए मैं पोपन्ना साहब, मेहता जी और कारा साहब को आमंत्रित करता हूँ। थर्ड है 2 to 4। और सेकंड प्राइज हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। अब उसको हम एक कंबाइंड रूप में देना चाहेंगे एंड इट गोज टू डीपीएस। प्राइज मैटर नहीं करता है। आप सब लोगों ने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से कोशिश की, प्रयास किया। दैट इज द पॉइंट। आप देखिए इन सबकी तरफ आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ उसको सेकंड मैंने काफी मेरे को Now it is time for poster. First prize goes to code number 111. Yes. अच्छा ये 107. Second goes to 101 and third goes to 107. हाँ कंबाइंड है ना इनका सब। तो थैंक यू वेरी मच। इनाम पोजीशन मैटर्स नहीं करती है। आपने छोटी छोटी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बताया था ना आपको हमारे जोशी सर ने, और अभी कालरा साहब ने भी बताया कि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्हें ऑर्गेनाइज करनी थी। एनीवे इट डजंट मैटर।
क्योंकि हमारे भी 11th और 12th में जब एटॉमिक मॉडल को हम स्टडी करते हैं तो ये चीजें आती है। तो अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे और समापन करेंगे इसका, प्लीज। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य दाता।